Hello friends, welcome back to our channel Learn with Nishman. So we were doing our chapter 17th of offenses against the property, and in last video we did criminal breach of trust, right? It was till section 409, and today we are going to start with section 410 to 414. So we are covering this group of section today, bache, and these sections are related to of receiving the stolen property. Okay, right, bache, of receiving the stolen property. Stolen property, you know about that. What is stolen property? So your section 410 clearly defines you. It is the definition clause and it defines you what is actually the stolen property. ओके हम चोरी की चीज़ किसे कहेंगे? चोरी की प्रॉपर्टी, राइट? तो बच्चे क्या होता है, ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आप थेफ्ट, राइट, थेफ्ट से, एक्सटोर्शन से, रॉबरी से, राइट, या मिस एप्रोप्रिएशन से, ओके, और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से, राइट? इन 5 तरीकों के ज़रिए, ओके, अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी रिसीव करते हो तो ऐसी प्रॉपर्टी को चोरी की प्रॉपर्टी या स्टोलन प्रॉपर्टी माना जाएगा. रिमेंबर दैट. ओके, लाइक ए हैज़ सम प्रॉपर्टी, ए के पास प्रॉपर्टी है, एंड बी कमिटेड थेफ्ट ऑफ इट, बी ने उसकी चोरी कर ली उस प्रॉपर्टी की. इट देन बिकम्स द स्टोलन प्रॉपर्टी. Right, bache? Similarly, any property which we obtain either through extortion, robbery, misappropriation or through breach of trust, it will also be termed as stolen this stolen property. Robbery में बच्चे, I am not here writing, but it itself includes dacoity. Okay, now अब जो बच्चे इन सेक्शंस में ध्यान देने वाली चीज़ें होती हैं, जो एग्ज़ाम में आने के कंप्लीट चांसेस होते हैं, क्या? द मोमेंट द प्रॉपर्टी इज़ एक्वायर्ड बाय द एक्यूज्ड, हेयर एक्यूज्ड वाज बी, सो मोमेंट जैसे ही वो प्रॉपर्टी बी ले लेता है, इट विल बिकम द स्टोलन प्रॉपर्टी, राइट? मेयर मूविंग डजंट मेक्स इट द स्टोलन प्रॉपर्टी. ओके, जस्ट मूवमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉट स्टोलन प्रॉपर्टी बच्चे. Okay, what you need is that transfer of that property, like it is the property, so transfer of this property in the hands of accused. Accused यहाँ पर हमारा कौन है? B. So when property is actually in the hands of B, only then we will say yes, it is the stolen property. Okay, so transfer of property in the hands of this accused is very necessary, right? If the property comes back into the possession of the person, right? अगर ये property B के पास थी and right after some time its possession goes back to A, वो property वापस B के हाथ में A के हाथ में आ जाती है, then such property ceases to be remain as stolen property. It will now not be stolen one. ओके, सो स्टॉलन प्रॉपर्टी का मेन बात क्या होनी चाहिए कि वो प्रॉपर्टी एक्यूज्ड के हाथ में ही रहनी चाहिए, एंड इफ आफ्टर सम टाइम इट गोज बैक टू इट्स ओरिजिनल ऑनर, इट विल देन नॉट बी टर्म्ड एज स्टोलन वन. दिस इज ऑल योर सेक्शन 410 टेल्स अस अबाउट स्टोलन प्रॉपर्टी. नाउ योर नेक्स्ट सेक्शन इज बच्चे सेक्शन 411, राइट? 411 talks about dishonestly receiving stolen property, right? Dishonestly की बात मेन करते हैं बच्चे. Dishonestly, it means mens rea is here your dishonesty, and actus reus is receiving or retaining that property after you have knowledge about it कि yes it is stolen one. ठीक है, आपको पूरी knowledge है कि जो property है वो stolen है, still you are receiving, you are retaining that property dishonestly, it will be your fault and it will be covered under section 411. okay बच्चे, so इसमें क्या होगा,
अगर कोई व्यक्ति ऐसी प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली रिसीव या रिटेन करता है ये जानते हुए कि वो प्रॉपर्टी स्टोलन है, देन ही विल बी पनिशेबल अप टू 3 years एंड फाइन। ओके, 3 years एंड फाइन की उसको पनिशमेंट देनी पड़ेगी। यहाँ पर जो चीज़ ध्यान में रखने की है वो बच्चे क्या है, यहाँ पर चोरी की चीज़ खरीदने वाले को उतनी ही सज़ा मिलेगी जो एक्चुअल में चोरी कर रहा है, राइट। इस केस में अगर बी ने वो प्रॉपर्टी स्टोलन की है, आफ्टर सम टाइम ही गिव्स दैट प्रॉपर्टी टू सी, राइट, वो सी को वो प्रॉपर्टी देता है, इधर सी परचेजेज इट और ही गिव्स इट टू सी, even C has complete knowledge, yes, that B has stolen it from A, then C will also get the same punishment as B will get. He will be termed as thief. उसको भी, उसके ऊपर भी theft की ही चोरी का इल्ज़ाम लगेगा। ओके बच्चे, सो नॉलेज ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज़, यहाँ पर बहुत सारे केसेस आते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ बच्चे। लाइक A है, राइट, A जो है सेल्स द वॉच, एक वॉच होती है, उस वॉच को सेल करता है किसको, बी को, जबकि उस वॉच की कीमत 1 लाख रुपीज़ है, राइट, ओके, एंड ही गिव्स इट टू बी फॉर जस्ट ₹100, वो सिर्फ 100 रुपीज़ की बी को देता है। सो बिलीव हेयर बी हैज़ रीज़न टू बिलीव, बी का कंप्लीट रीज़न है ये समझने का, जानने का कि अरे इतनी महंगी घड़ी को जस्ट मुझे 100 रुपये में क्यों दे रहा है, right? So B has the reason to believe that the property might be stolen one. It depends upon the circumstances बच्चे of each case. Like जब तक एक खरीदने वाला ये ना देखे, सारे circumstances, सारी situation को ना जाने, तो तब तक उसको हम वही सज़ा देंगे जो actual thief को मिलती है, right? If the person has done like took all the inquiry he can do, राइट, जो ड्यू इंक्वायरी वो कर सकता था उसने करी, बट देर इज़ नो रीज़न टू बिलीव दैट द प्रॉपर्टी वॉज स्टोलन वन, और उसको लगता है नहीं ये प्रॉपर्टी चोरी की नहीं है, तब उसको चोर नहीं माना जाएगा। सो एक पर्सन को पूरी ड्यूटी बनती है, अगर उसको ज़रा सा भी आइडिया ऐसा लगता है कि नहीं इस प्रॉपर्टी में कुछ खोट है, इसकी वैल्यू थोड़ी कम या ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू इट्स प्राइस, ही मस्ट डू कंप्लीट इंक्वायरी अबाउट दैट, अदरवाइज ही विल बी चार्ज एंड लाइबल अंडर सेक्शन 411। ओके, सो बाद में बी यहाँ पर क्लेम कर सकता है कि नहीं मैंने ड्यू इंक्वायरी की थी, मुझे कोई आइडिया ही नहीं लगा, मुझे कुछ ऐसा ही नहीं लगा कि ये प्रॉपर्टी चोरी की है। ओके बच्चे, नाउ योर सेक्शन 412, 413, रीड इट फ्रॉम योर बुक, they are just reading sections, and now come to section 414 सेक्शन। ओके बच्चे, सेक्शन 12 और 13 को आपने रीड करना है बुक से। नाउ योर सेक्शन 414 टॉक्स अबाउट असिस्टिंग इन कंसीलमेंट ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी। असिस्टिंग मीन्स हेल्पिंग, एडिंग, यू आर हेल्पिंग समवन इन हाइडिंग दैट प्रॉपर्टी, उसकी कंसीलमेंट, उसको छुपाने में मदद कर रहे हो दूसरे पर्सन की, तो वहाँ पर आप भी उतने ही लाइबल होगे जितना कि एक थीफ एक्चुअल में होगा। ओके बच्चे, हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दीज केसेस। एक्सटॉर्शन अगर किसी प्रॉपर्टी का हुआ है आप उसकी तब हेल्प कर रहे हो, रॉबरी अगर किसी ने करी है देन आप उसकी हेल्प कर रहे हो, कोई ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से उस प्रॉपर्टी को हड़प लेता है तब भी आप उसकी हेल्प कर रहे हो। सो आई एम हेयर कवरिंग ऑल दीज केसेस। ओके, so your 414 says when a person receives and hide the property he will be liable, राइट, आपने उसको उसकी थेफ्ट या वट एवर बी दीज सिचुएशंस आ रही है तो किए ही हैं, प्लस उसको आप हाइड या कंसील कर रहे हो, देन आप पर ये वाला जो सेक्शन पर्टिकुलर होगा इनके अकॉर्डिंगली वो तो लगेगा ही लगेगा, प्लस 414 ऑल्सो विल बी चार्ज्ड। Okay, so here if person has done theft and he is hiding that property, then he will be liable under 411 as well as 414. 411 हमने क्या किया था, dishonestly you are keeping that and hiding it. So now अब आपको अच्छे से समझ में आ गया है जो भी हमने ये sections किए हैं that are related to stolen property. Okay, and these are covered in section 410 to 414. Your chapter 17th is going on, and in next video we are covering the major and the most important topic, that is cheating. So stay tuned till then, give a brief reading to all the sections. Thank you.